Today I'm going to start our new chapter, chapter number 4, BC. Write down the name Public Relation. Public Relation. Have you written? Have you written? Yes, ma'am. Public Relation. Okay, let's start. What is public relation? Public relation means exactly what word suggests relation with the public. Human beings can never live in isolation. We need someone to talk and share our views. In this way, we practice the public relation from just after we take the birth. So here it is said that public relation means it is related with the public. That word suggests how to talk with the people. Means word suggests means we learn ABCD K Kh G from nursery, but in the real way, that whenever we understand which word at what time we have to use, that is called communication. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. यहाँ पे पब्लिक रिलेशन कैसे पता है आपको? द नेम ह्यूमन बींग्स कैन नेवर लिव इन आइसोलेशन. मीन्स इफ वी सिट quietly for 5 times, 10 times, then we can sit at least 10 times. We can sit at least 10 times. Okay, quietly 10 times, 10 minutes. Sorry. So here इट इज सेड दैट कि हमें कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन. दैट रिलेशन सिंपली डिफाइन आर द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग राइट द थिंग ऑफ परफॉर्मिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सब्सटेंसेस ऑफ वेरी of that very performance. The distinctive thing that about public relation that is deliberate. So here it is said that public relation means the relation means what we are going to do the right things with the others. That is called relation. So relation, we maintain the relation in our society also. We maintain the relation in our family also. We maintain the relation outside also, means with friends also. But how to maintain it is more important. Do you understand? How to maintain it is more important. Do you understand or not? हाँ या No, ना? ma'am. No? No? You can't No, understand? ma'am. For example, for मैम communication, आवाज ब्रेक होती है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ Yes, या ना? ma'am. हाँ. यहाँ यस पे मैम। आपको क्या बताया कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए. वर्ड्स ना हो तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्या? वर्ड्स ना हो तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हाँ या ना? विदाउट वर्ड्स हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नो ना? नो मैम। हेलो. If you are answerable, then I can understand. Yes, you are listening, and I am delivering the lecture in the proper way. Because if sometimes the network issue, so we can't understand whether the answer is not given. कि नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं हो रहा है. कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के लिए वर्ड जरूरी है. और हम बोलते हैं कि रिलेशन, पब्लिक रिलेशन मीन्स इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक. एंड द रिलेशन मीन्स इन द फैमिली ऑल्सो, in the friends also, and outside means in the society also. Okay, so at that time we need communication. कि हम अकेले ज़्यादातर रह नहीं सकते, लेकिन हमें अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए. अकेले हम ज़्यादा नहीं रह सकते. हम फॉर एग्जांपल कि जब हम बात करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कि जब ग्रुप में बात करते हैं तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स हम शांति से बैठ सकते हैं. उससे ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते पास, या जिसको बोलने की आदत है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. टेक्निकली डिफाइंड द पब्लिक रिलेशन आर मैनेज द फंक्शन दैट इवेल्यूट द पब्लिक एटीट्यूड्स, identify the policies and the procedure of the organization, and execute the program of action to earn public understanding and acceptance. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि टेक्निकली हम उसको जब डिफाइन करें, या टेक्निकली हम पब्लिक रिलेशन को जैसे बात करें, तो उसको मेंटेन करने की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल पीपल्स एटीट्यूड. देन कि हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, उस एक्शन को, प्रोग्राम ऑफ एक्शन टू अर्न द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस. तो कि जैसे
एक हाँ हम बोलते कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन रखा जाता है या हम बोलते कोई भी प्रोग्राम रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हमको लोगों का अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस पता चलता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। अभी नीड फॉर पब्लिक रिलेशन क्यों जरूरी है, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिंग ऑन पब्लिक रिलेशन विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव एंड स्मूथली। तो जब हम पब्लिक रिलेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्मूथली रन कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बोलते कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कॉलेज है, तो कॉलेज में हम बोलते कि या स्कूल्स में कि जैसे फंक्शंस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं या ड्रामा, हम बोलते कि फॉर एग्जांपल डांस कंपटीशन होता है, ऐसे राइटिंग होता है, हम बोलते फिर बोलते कि स्पीच कंपटीशन होता है। तो जिसकी वजह से हमें बच्चों का या हम बोलते कि छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव हैं, तभी हमको ये पता चलता है। वैसे ही कि जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई प्रोग्राम रखा जाता है, पार्टी रखी जाती है, तो सब गेट टुगेदर होते हैं, तभी हमको उनका परफॉर्मेंस का, उनका एटीट्यूड का, उनका हम बोलते हैं कि बिहेवियर का तभी हमको पता चलता है। पब्लिक रिलेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग द गुड इमेज फॉर बैड थिंग। तो ये पब्लिक रिलेशन है, तो कोई पर्सन के लिए या जो हम बोलते हैं कि जो खराब व्यक्ति है या बैड टीम है, तो उसके लिए कोई गुड इमेज रेडी नहीं कर रहा है। सिंस द फॉल्स इमेज कैन नॉट बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हम बोलते हैं कि जो फॉल्स इमेज होते हैं, तो उसको हम ज़्यादातर लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। दो द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज आर गुड इन इट नीड एंड इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन campaign for attracting, motivating the public to product or service or towards the purpose of the program। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे कोई भी हम बोलते हैं कि इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन जब कंपेनियन बनाया जाता है या बनाया जाता है, पब्लिक रिलेशन बनाया जाता है, पीआर उसको बोलते हैं, तो वो क्या करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसकी सर्विस बताने के लिए वो प्रोग्राम रखा जाता है। कि जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो पब्लिक रिलेशन क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनके साथ हमें व्यवहार करना है। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बहुत ही फेमस है, तो उसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसके लिए लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखती है इंडस्ट्री। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next point is an effective public relation can create an effective public relation can create and build up the image of an individual or an organization or nation। तो हम बोलते हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट हो कोई भी, ओके, तो वो अच्छा है और उसको मेंटेन किया गया है बरसों से, तो लोग वही का वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हमने अभी आगे पढ़ा कि हम बोलते हैं कि बैड टीम होती हैं, तो उसके लिए कोई गुड इमेज तैयार नहीं किया जाता है। तो पब्लिक रिलेशन क्यों क्रिएट किया जाता है कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज के लिए, बिल्डअप करने के लिए उनके जो हम बोलते हैं कि एफर्ट्स होते हैं वो डाले जाते हैं, या हम बोलते हैं कि उसकी पब्लिसिटी करने के लिए, या हम बोलते हैं कि हाँ सॉरी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल होते हैं, उनकी एक इमेज तैयार करने के लिए वहाँ पे पब्लिक रिलेशन बनाया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, एम आई राइट? बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हाँ या ना? वी डेली सी द Yes, ma'am. लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द टेलीविजन। बट जब भी हम डेटोल की ऐड आती है, Yes, ma'am. डेटोल की आती है, हम बोलते हैं कि हैंड वॉश की ऐड आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कौन से प्रीफर करते हैं? बहुत सारे हैंड वॉशेस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं? हाँ, टू whom we give the first preference? किसको देते हैं हम फर्स्ट प्रेफरेंस?
फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं कि जैसे हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब अच्छी वाली प्रोडक्ट खरीदना हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, किसको देते हैं? हेलो हेलो, Yes, ma'am. किसको Yes, ma'am. किसको देते हैं? कौन सा प्रोडक्ट हम ज़्यादा अच्छा वाला खरीदते हैं? घर में कौन सा प्रोडक्ट हमको दिखाई देता है? कौन सा प्रोडक्ट दिखाई? डेटॉल। 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 तो सबसे हाँ डेटॉल। हाँ, वर्षों से वो कंपनी चलती आ रही है, एक अपना एक गुड इमेज बनाया है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे रही है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेटॉल खरीदते हैं। तो दैट इज द थिंग। ओके, एट द टाइम ऑफ स्क्रीन में मी स्क्रीन पाठवलेली नाही आहे, मी पाठवते तुम्हाला, मी स्क्रीन नाही पाठवलेली आहे. At the time of adverse publicity or when the organization is under the crisis, an effective public relation can remove the misunderstanding and can create the mutual understanding between the organization and public. कि कभी कभी ऐसी हालात हो जाती है कि अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी हम बोलते हैं कि ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी कंपनी को लॉस हो रहा है और हम बोलते हैं कि पब्लिक का और उसका रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या हम बोलते हैं कि जो क्रिएट की जाती है, तो उसको हटा के फिर से वो अपना रिलेशन पब्लिक के साथ एस्टेब्लिश कर सकती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप जब प्रोडक्ट लेते हो तो उसका हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है, डुप्लीकेट चीज़ें मिलती है ना उसको लेके, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ज़्यादातर Yes, कभी ma'am. कभी कभी हमें ये समझ में आता है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तभी हमको ये समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल आपको ईयरबड्स जो हम बोलते हैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का जो ईयरबड्स है, ओके, जॉनसन कंपनी का, तो वो ईयरबड्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना भी जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू पुट इट इनटू द ईयर दैट द कॉटन विल नॉट बी रिमूव, कॉटन निकलेगा ही नहीं। लेकिन आप बोलते हैं कि जैसे सस्ती वाली कंपनी का, या हम बोलते हैं कि उसका हम बोलते हैं कि जो ढांचा होता है वो आपने इस्तेमाल किया तो आपने थोड़ा सा भी इफ़ यू पुट इट इनटू द ईयर द कॉटन विल बी रिमूव्ड क्विकली। समझ में आ रहा है? तो कॉटन विल बी रिमूव्ड क्विकली, तो कॉटन होता है वो जल्दी से निकल जाएगा। सो ये हमें डिफरेंस, ये डुप्लीकेसी हमें दिखाई देती है। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? यस मैम। आगे बात करते हैं। द Yes, पर्पस ma'am. The purpose of the public relation. The public relation is not mere publicity. For the publicity is one-way process by which an individual or an institution systematically distribute the information. Public relation is a two-way communicating process in which the information is given to the public and the option and ideas of the public are obtained. तो पब्लिक रिलेशन का जो हम बोलते हैं पर्पस होता है वो क्या होता है, एक तो पब्लिक तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन देना, और दूसरा होता है पब्लिक की राय जान लेना और ओपिनियन जान लेना और उसको मेंटेन करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको डेटॉल का आपको एग्जांपल दिया, डेटॉल को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हाँ डेटॉल अच्छा है, लेकिन घर घर में लोग इस्तेमाल करते हैं डेटॉल, अस्पताल में इस्तेमाल करते हैं, क्लीनलीनेस के लिए हम डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं। सो it gives the good image to the public whenever it is maintained। समझ में आ रहा है? जो प्रोडक्ट होता है जब उसको मेंटेन किया जाए, इट क्रिएट्स द गुड इमेज इन द माइंड ऑफ द पब्लिक, वो पब्लिक के दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका होता है। Then people do not trust the advertisement because they make tall claims, the best toothpaste, washes, whitest, and the public relation no doubt use the publicity, but main objective is to reach the mind of the outside the public and establish the mutual understanding। तो ज़्यादातर जो पब्लिक होती हैं तो दे डू नॉट ट्रस्ट द एडवर्टाइजमेंट, कि जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छे से अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, फिर एडवर्टाइज की जाती है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम बोलते हैं कि जो पब्लिक होती है इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है तभी उनको समझ में आता है कि प्रोडक्ट कैसा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। डू अंडरस्टैंड? हाँ, दैट इज द थिंग।
आगे देखते हैं। देन पब्लिक रिलेशन कवर्स द फॉलोइंग एरिया। तो कौन से एरिया और कौन से पॉइंट्स को वो कवर करते हैं, तो वो पॉइंट्स आप लिखेंगे। सबसे लिखिए पहले। सब फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। पहला पॉइंट है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज रिटर्न रिटर्न, यस और नो। Yes, ma'am. हाँ। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोवर्सी। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोवर्सी। रिटर्न रिटर्न, Yes, yes or no. ma'am. Then fourth point is adverse publicity. Fourth point is adverse publicity. Adverse publicity. Then fifth point is catastrophe. Fifth point is catastrophe. And next point is crisis. Next point is crisis. Written? Written? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या? To inform the new services and policies which call for public relation to make the wider publicity। तो जितना भी हम बोलते कि जितना भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसके सर्विस में बारे में आपको बताया जाता है। न्यू इन्फॉर्म, न्यू सर्विस, न्यू पॉलिसी फॉर द पब्लिक रिलेशन टू मेक द वाइडर पब्लिसिटी। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल हमें खरीदना हो, टू व्हीलर खरीदना हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दिया जाता है। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना हो, तो जब आप खरीदने जाते हैं, तो जहाँ पे दुकान में आप खरीदने जाते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, हाँ या ना? आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। Yes, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज Yes, कॉम्पिटिटिव। ma'am. टू ओवरकम द रेजिस्टेंस प्री सेट माइंड कंडीशन। मीन्स चीज़ें खरीदने से पहले हमारा एक माइंड सेट रेडी होता है कि महंगा वाला होगा वगैरह वगैरह वगैरह। जितना बड़ा दुकान होगा उसमें महंगा चीज़ मिलता है, ऐसा। तो जब हम बोलते कि कॉम्पिटिटिव मीन्स हम बोलते कि टू ओवरकम द रेजिस्टेंस मीन्स जो माइंड होता है, हम बोलते हैं कि जो माइंड कंडीशन होता है कि हमें चीज़ें खरीदना है कि नहीं खरीदना है, उसको हम मीन्स जो हम बोलते हैं कि जो सेलर होता है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोवर्सी। टू एलिमिनेट द कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक। तो पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहे, ऐसा कोशिश ऑर्गेनाइजेशन करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स पब्लिसिटी। टू इन्फॉर्म द ट्रूथ और करेक्ट इश्यूज thereby रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उसका मतलब क्या है? एडवर्स पब्लिसिटी का मतलब क्या है? ऑलवेज हम बोलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, यहाँ इंफॉर्मेशन जो देता है ऑर्गेनाइजेशन, वो सही होनी चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज ट्रूथ। कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि डाबर लाल या दंत कांति वगैरह, तो ये जो टूथपेस्ट की जब ऐड बताई जाती है तो उसमें बोलते हैं कि हर एक प्रकार की वनस्पति या औषधि का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सही में उसमें इस्तेमाल ना किया गया हो। और जब हम ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तभी हमको समझ में आते कि सही में इतना ऐड बताते हैं बड़ा चढ़ा के, तो वो सही इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं। तो आपको जब भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो सही देना चाहिए। समझा? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज Yes, Yes, ma'am. कैटेस्ट्रॉफ। ma'am. कैटेस्ट्रॉफ मीन्स मतलब क्या? द अनाउंसमेंट ऑफ एनी अनफेवरेबल इश्यूज। कैटेस्ट्रॉफ मीन्स मतलब कि फॉर एग्जांपल जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका हम बोलते हैं कि फीडबैक देते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव फीडबैक होता है अनफेवरेबल, तो हम बोलते हैं कि इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कि जब अनाउंसमेंट ऑफ एनी अनफेवरेबल इश्यूज, तो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसका गारंटी आपको दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है, हाँ या ना?
जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं तो आपको उसका गारंटी दिया जाता है, यस और नो? यस और नो? हाँ, Yes, दिया ma'am. जाता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल तक चलेगा, या हम बोलते कि मीन्स गारंटी 1 साल की है, या हम बोलते कुछ भी कि फॉर एग्जाम्पल इतना साल तक वो चल सकते हैं। उससे ज़्यादा आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उस पर वो डिपेंडेंट है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो दैट इज द थिंग, अनाउंसमेंट ऑफ एनी अनफेवरेबल इश्यूज। और लास्ट पॉइंट है क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम, that whenever the threats arises, कि जब आपको फॉर एग्जांपल जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कभी भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी कभी कभी वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि ब्यूटी क्या बोल सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट हो या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हो, तो उसमें ज़्यादातर उसकी गारंटी 1 या 1.5 साल की होती है। लेकिन अब जब उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, या हम बोलते हैं कि उससे एक्सपायरी डेट की ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो क्या हो जाएगी, उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन पे, या हम बोलते हैं कि उस कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं एज अ कस्टमर। लेकिन हम बोलते हैं कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हम डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, तो जब भी जो मेडिसिन आपको दिया गया है, जो केमिस्ट के पास आप लिखवा के, मीन्स डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है, वही केमिस्ट के पास उपलब्ध ना हो, तो केमिस्ट दूसरे कंपनी का आपको मेडिसिन दे देता है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द पब्लिक ऑफ पीआर और द पब्लिक रिलेशन। अभी उसको किस तरह से बोलते हैं कि ग्रुप में कितने टाइप्स होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसके टाइप लिखेंगे, सो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ पीआर और द टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। टाइप्स ऑफ पीआर उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। हैव यू रिटर्न? हैव यू रिटर्न? Yes, ma'am. हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक, इंटरनल पब्लिक। रिटर्न। सेकेंड पॉइंट है Yes, ma'am. जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक। थर्ड पॉइंट है लोकल कम्युनिटी पब्लिक। लोकल कम्युनिटी पब्लिक। देन फोर्थ पॉइंट इज सिटीजन एक्शन पब्लिक। सिटीजन एक्शन पब्लिक। लिखा? मीडिया पब्लिक। Yes, ma'am. मीडिया पब्लिक। एंड लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पब्लिक। लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पब्लिक। रिटर्न। Yes, ma'am. ओके। तो अभी ये इस टाइप के हम जो पब्लिक रिलेशन है उसकी बात करते हैं, ये क्या बताते हैं हमको। तो सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक, इंटरनल पब्लिक। तो इंटरनल पब्लिक क्या है? द बिजनेस इंटरनल पब्लिक इंक्लूड its employee and manager. They expect the fair pay and condition, safe working environment, access to the training and the development. Good employee moral helps to develop and maintain the positive image of the external public. तो इंटरनल पब्लिक मीन्स हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात, या हम आप बोलते हैं कि काम करने वाले लोगों के साथ तो कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉय और मैनेजर का रिश्ता कैसा होना चाहिए। उसमें हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय को ऐड किया गया है और मैनेजर को ऐड किया गया है, तो जब भी वो काम करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जैसे काम करते हैं उनके हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए। हम बोलते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए।
जब कोई नया एम्प्लॉय वहाँ पे आता है तो उसको ट्रेनिंग वहाँ पे मिलना चाहिए किस तरह से काम करना है, ना कि उसको हम बोलते कि क्या बोलते कि उसका हम बोलते कि उसको हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको कभी बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप नए हो, आप काम पे नहीं जा रहे हो, आपको थोड़ा सा हम बोलते हैं कि वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो फिर जो जो पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं या हम बोलते हैं कि जो मैनेजर है तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे या किस तरह से काम करना है, वो वैसा होना चाहिए। तो कैसा होता है कि जैसे काम कोई भी जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम अच्छी तरीके से करेगा तो फिर आपका जो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज होगा वो कैसा होगा, अच्छा क्रिएट होगा। समझ में आया? समझ में आया कि Yes, नहीं? ma'am. समझ Yes, में आया ma'am. कि नहीं? Yes. जैसे फॉर एग्जांपल काम वहाँ से अच्छी तरह से हो, गुड एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, तो काम करने को सबको कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तनाव तनाव में जैसे काम किया जाता है तो फिर वो क्या होता है, काम ठीक से नहीं होता है। और हम बोलते हैं कि जैसे आपका एक अकेला का काम नहीं हुआ तो पूरा हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम कहीं ना कहीं अटक जाता है। देन बोलते हैं कि आगे बात करते हैं कि जनरल पब्लिक मतलब क्या? द जनरल पब्लिक फीलिंग towards business can affect its customers' attitude. That society expects the fair and honest business practices and ethical and responsible decision. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक फीलिंग मीन्स हम बोलते हैं कि ऑल ओवर जो हम बोलते हैं कि कस्टमर है तो उनका एक एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी और फेअर अँड ऑनेस्ट बिझनेस प्रॅक्टिसेस. हमें आपण म्हणतो ना की तिथे फसवा-फसवी नको किंवा कोई टाइप का चीटिंग नहीं होना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ें खरीदते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर को आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप कितना सेल रखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. तो सेल में भी फॉर एग्जांपल आपने कई चीज़ें ऐसी देखी हो कि हाँ सेल में चीज़ें रखी तो हैं लेकिन उसका हम बोलते कि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है. हम बोलते कि सस्ते में निकाल रहे हैं लेकिन हम बोलते कि जो पुराना वाला माल है वो बेच रहे हैं. तो पुराना वाला माल तो बेचना ही लेकिन उसका थोड़ा सा हम बोलते कि जो क्वालिटी होता है या क्वांटिटी होता है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल मैम, कम्युनिटी. हाँ हाँ, ग्रुप पे वेबिनार की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए हाँ हाँ मैसेज हाँ आया है। हाँ हाँ. एक 2 मिनट में अपना ख़त्म करती हूँ फिर अपने स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हाँ ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल कम्युनिटी पब्लिक. So this public is of the crucial importance for small business because it represents the local resident neighborhood organization. They expect the business to be the good corporate citizen. तो लोकल का पब्लिक मीन्स हम बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज के आसपास के लोग हैं या हम बोलते हैं कि हमारे एरिया में कोई इंडस्ट्री है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो एक अच्छा बिजनेस करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन को लोकलिटी को आप सेटिस्फाइड करें, लोकल पीपल को आप सेटिस्फाइड करें तो जिसकी वजह से आपकी एक इमेज गुड कॉरपोरेट आपका एक इमेज बढ़ सकता है. समझ में? Yes, ma'am. Okay, so we will stop here because you will have a webinar, no? All of you. So we will stop here.